18.5 hands, and these magnificent horses are very well looked after by the 44 Military Veterinary Hospital. A unique, distinct regiment. The personnel are handpicked, all of them at least 6 feet tall. And of course, besides performing ceremonial duties for the president, the officers and men of the bodyguards are trained horsemen, paratroopers and tanksmen. Chushul in 1962, in the Western Theatre in 1965, and in Operation Pavan in Sri Lanka in 1988. They've all seen action there. The flag fluttering high, indicating that the president is in Rashtrapati Bhavan, in residence. Equality, freedom, justice, pluralism, tolerance, respect, participation. The list of values that a democracy stands for include that which has been stated by earlier generations and also those which evolve as time goes by. To keep up with the times, to yet bring in tradition so that the past and the future are connected by the present. That is a legacy we leave behind. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का जीवन महिलाओं और बालिकाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। ज्यादातर समाजों में हमने देखा है कि लिंग भेद होता है, बेटा बेटी में भेद किया जाता है, और ऐसे में बालिकाओं के सामने, महिलाओं के सामने संघर्ष और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने बालिका विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें बेटियों को बचाने के लिए बेटियों को बचाओ और इसी के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीबीएसई की उड़ान योजना, लड़कियों के लिए मुफ्त या राज सहायता प्राप्त शिक्षा, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण, माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रेरित करने की राष्ट्रीय योजना। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है वो ये कि जितने भी अवसर हैं उसमें कहीं कोई भेदभाव ना हो, समानता हो, लड़कों के बराबर उन्हें भी आगे बढ़ने के वो सभी अवसर प्राप्त हों और ये सुनिश्चित हो घर से। वो समाज जब भेद नहीं करता, जब बेटा और बेटी समान हैं, तब वो समाज पूरी तरह से विकसित होता है, विकास करता है। ये ऐसी कहानियां हैं जो प्रेरणादायी हैं और जिनकी मिसालें आने वाली पीढ़ियां भी देंगी। In a short while from now, we shall see the arrival here at the forecourt of the President, Shri Ramnath Kovind, and the President-elect, Srimati Draupadi Murmu. As the constitutional head of the country, the President is de facto also the first citizen of India, playing a significant role of the head of state of India. The President is also the supreme commander of the 3 Indian armed forces. It is laid down in our constitution that the President has the responsibility and the authority to accord with, to defend and protect the Constitution and its rule of law. The Constitution
which is the basis of our democracy. The Constitution, which shows us the way whenever we tend to get lost. The Constitution, which ensures the values of dignity for all, equality, equity, brotherhood, fraternity, and justice. राष्ट्रपति अंगरक्षक मुस्तैद राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में दरबार हॉल के सामने, ये प्रांगण की मुख्य सीढ़ियां, और अब से कुछ देर में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और निवर्तमान राष्ट्रपति दोनों यहां पधारेंगे। उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा और फिर वो प्रस्थान करेंगे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष की ओर। ये दृश्य राष्ट्रपति भवन की ओर से, और यहां दरबार हॉल में निवर्तमान राष्ट्रपति और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति Information, an informal procession. The President of India, Shri Ramnath Kovind, and the President-elect of India, Srimati Draupadi Murmu, going past and through the Darbal Hall. Under the shadow of Lord Buddha, 5th century BC Gupta period style. The dignitaries moving towards the dais for the national salute. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा। राष्ट्रीय सैल्यूट पद्यात्मक। President Ramnath Kovind
sitting in his vehicle, and accompanying him, the President-elect, Srimati Draupadi Murmu, as they make their way राष्ट्रपति अंगरक्षक अनुरक्षी towards बनेगा। Parliament House. सेक्शन मार्गों कदम कदम। राष्ट्रपति भवन से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और निवर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद प्रस्थान कर रहे हैं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष की ओर। उनके साथ राष्ट्रपति अंगरक्षक, विशाल भव्य राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से ये काफिला अब धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन के मुख्य द्वार की ओर बढ़ता हुआ भारत के लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण दिन, खास मौका। देश की 15वीं राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर में शपथ लेंगी। रायसीना पहाड़ी पर बना विशाल और भव्य राष्ट्रपति भवन, जिसकी नींव सन 1911 में रखी गई थी और इसी के जयपुर कॉलम के नजदीक से गुजर रहा है ये काफिला, जो अग्रसर है संसद भवन की ओर। The President's limousine is escorted by the President's bodyguard, proceeding to gate number 5 of Parliament House. In fact, the 6 Sikh will turn out guard at the southern side of the Jaipur column for departure. Commanding Officer Colonel S.K. Mohanty, personnel from the 3 services, and we showed you shots of this earlier, have lined up the path with arms on the route and will present arms as the dignitaries pass by. राष्ट्रपति भवन की भव्यता, प्रांगण दोनों ओर नहर और फव्वारे, और काफिला धीरे धीरे मुख्य द्वार की ओर बढ़ता हुआ। विशाल लोहे का मुख्य द्वार जो विशेष अवसरों पर खोला जाता है, और आज ऐसा ही विशेष अवसर है जब भारत की 15वीं राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण करेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो रहा है। और ये काफिला धीरे धीरे रायसीना पहाड़ी से अब विजय चौक की ओर बढ़ता हुआ, वहां से बाईं ओर संसद भवन है जो गंतव्य है इस काफिले का। It's a very poignant moment, reflective moment for President Ramnath Kovind, and of course a joyous and celebratory moment for Srimati Murmu, but also knowing that she has a task ahead and to serve the country to the best of her ability. The guard and personnel from the 3 services lining the path with the fundamental responsibility of maintaining the integrity of the Constitution of India. The President of the largest democracy in the world is vested with specific legislative and judicial and financial powers, among many others, to ensure that the sanctity of the Constitution is upheld. And Indian democracy is the result of the great gift our founding fathers gave us. The gift of a constitution that, other than being the longest written constitution in the world, holds in its embrace the firmness to provide us solid and strong roots, and the liberalism to give us wings to grow, fly, and change. And as we await the swearing-in ceremony of India's 15th president to take place,
Srimati Draupadi Murmu will soon hold with her the sacred responsibility of maintaining the integrity of this constitution as the new President of India. ये काफिला रायसीना पहाड़ी से विजय चौक की ओर बढ़ता हुआ और दोनों ओर तीनों सेनाओं के पर्सनल पूरे मार्ग में बहुत ही खास अवसर देश के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और देश के प्रथम नागरिक होते हैं। बहुत ही खास अवसर जब एक राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है और नई राष्ट्रपति इस पद की जिम्मेदारी अब से कुछ देर में ग्रहण करेंगी। There invariably is, as a form of mainstream dialogue, a recurring reference to the values a democratic nation rests on, and moving these values from paper to people is the true test of democratic governance. Srimati Murmu, as she will shortly take oath today, will be wanting to ensure that she centers her tenure around these values and principles. The values and principles that she has always held dear, in sync with the form of governance she sits atop as its constitutional head. Principles of action that sustain society and democracy to be stable and successful at both the political and social levels. And it is because the scope of these often are justified and vehemently defended values is so far-reaching that they are debated and discussed at the public level. The President's limousine on its way to gate number 5. जन कल्याण की यात्रा सतत निरंतर चलती रहती है। भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बेहद शानदार दिन, जहां सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर किस तरीके से हस्तांतरण होता है, ये इसके हम सब गवाह बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। और ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी लोकतांत्रिक विरासत की ये खूबसूरत तस्वीर। संसद भवन के निकट पहुंचता हुआ ये काफिला कुछ देर में संसद भवन के गेट नंबर 5 पर पहुंचेगा। The carcade making its entry to Parliament House. संसद भवन में दाखिल होता हुआ ये काफिला
Parliament, wherein in just a few moments from now, Madam Draupadi Murmu will be sworn in as the 15th President of India, only the second woman President of the country, the first tribal President, also the youngest President India has ever had. The President-elect being welcomed by Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu. Along with him is Chief Justice of India, Mr. N.V. Ramanna, Lok Sabha Speaker Om Birla as well. Both the outgoing President and the President-elect being accorded the welcome outside the Central Hall of Parliament. That's the tradition, the discipline that, we see every 5 years when the outgoing President escorts the President-elect from the Rashtrapati Bhavan to the Parliament premises, wherein in the iconic Central Hall of Parliament, the President-elect takes oath of office. Madam Draupadi Murmu will, in a short while from now, take oath as the 15th President of India in the presence of Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu, Lok Sabha Speaker Om Birla, Prime Minister Narendra Modi, members of the Union Cabinet, also the Chief Ministers of various states, state governors as well, and a host of other dignitaries in attendance inside the Central Hall of Parliament. Chief Justice of India, Mr. N.V. Ramanna, will administer the oath of office to Madam Draupadi Murmu, who will, in a short while from now, take oath as the 15th President of India from the iconic Central Hall of Parliament. बिल्कुल अपने आप में ये ऐतिहासिक तस्वीरें कुछ ही पलों में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी। आजादी के बाद जन्म लेने वाली वो पहली राष्ट्रपति होंगी, साथ ही दूसरी महिला राष्ट्रपति और जनजातीय समुदाय से राष्ट्रपति पद तक का सफर तय करने वाली पहली महिला।
international. राष्ट्रपति महोदय, आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचित राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री रामनाथ कोविंद की पदावधि का अवसान वर्ष 2022 के जुलाई मास के 24वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के दूसरे दिन होने के लिए नियत है और यतः भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष वर्ष 2022 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई हैं। भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2022 के जुलाई मास के इस 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन प्रदत्त किया गया। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी।
राष्ट्रपति महोदया, आपका आदेश हो तो आपके पद ग्रहण की उद्घोषणा की जाए और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। इसकी सूचना प्रमुख सेना केंद्रों तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। ऐसे ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृतकाल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरी पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। काल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस
पृष्ठभूमि से आती हूँ, वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था। लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुरानी लीग से हटकर नए रास्ते पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। देवियों और स्वजनों, मेरे सामने भारत के राष्ट्रपति पद की ऐसी महान विरासत है जिसने विश्व में भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का निरंतर मजबूत किया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद जी तक अनेक विभूतियों ने इस पद को सुशोभित किया है। इस पद के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनिधित्व का दायित्व भी मुझे सौंपा है। संविधान के आलोक में मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। मेरे लिए भारत के लोकतांत्रिक सांस्कृतिक आदर्श और सभी देशवासी हमेशा मेरे ऊर्जा के स्रोत रहेंगे। देवियों और स्वजनों, हमारे संवैधानिक संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में एक राष्ट्र के तौर पर भारत की नई यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। हमारा स्वाधीनता संग्राम उन संघर्षों और बलिदानों की अविरल धारा है जिसने आज़ाद भारत के लिए कितनी ही आदर्शों और संभावनाओं की सिंचा था। पूज्य बापू ने हमें स्वराज, स्वदेशी, स्वच्छता और सत्याग्रह द्वारा भारत के सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना का मार्ग दिखाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें राष्ट्र के स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई, रानी वेलु नाचियार, रानी गाईदिन्लु और रानी चेन्निमा जैसी अनेकों वीरांगनाओं ने राष्ट्र इच्छा और
राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका को नई ऊर्जा दी है। संथाल क्रांति, पाइक क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया। सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। मुझे खुशी है कि आज़ादी की लड़ाई में जनजातीय समुदाय के योगदान को समर्पित अनेक म्यूजियम देश भर में बनवाया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में 75 वर्ष में भारत ने प्रगति के संकल्प को सहभागिता एवं सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया है। विविधताओं से भरे अपने देश में हम अनेक भाषा, धर्म, संप्रदाय, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों का अपनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सक्रिय है। आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आया है अमृतकाल। भारत के लिए नए संकल्पों का कालखंड है। आज मैं इस नए युग के स्वागत में अपने देश को नई सोच के साथ तत्पर और तैयार देख रही हूँ। भारत आज हर क्षेत्र में विकास का नया अध्याय जोड़ रहा है। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट का सामना करने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ्य दिखाया है, उसने पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाया है। हम हिंदुस्तानियों ने अपने प्रयासों से न सिर्फ इस वैश्विक चुनौती का सामना किया, बल्कि दुनिया के सामने नए मापदंड भी स्थापित की। कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज लगाने का कीर्तिमान बनाया। इस पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस संयम, साहस और सहयोग का परिचय दिया, वो एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। भारत ने इन मुश्किल हालात में न केवल खुद को संभाला, बल्कि दुनिया की मदद भी की। कोरोना महामारी से बने माहौल में आज दुनिया भारत को नए विश्वास से देख रही है। दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए, सप्लाई चेन की सुगमता के लिए और वैश्विक शांति के लिए दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। आगामी महीनों में भारत अपनी अध्यक्षता में G20 ग्रुप की मेजबानी भी करने जा रही है। इसमें दुनिया के 20 बड़े देश भारत की अध्यक्षता में वैश्विक विषयों पर मंथन करेंगे। मुझे विश्वास है भारत में होने वाले इस मंथन से जो निष्कर्ष और नीतियां निर्धारित होंगे, उनसे आने वाले दशकों की दिशा तय होगी। देवियों और स्वजनों, दशकों पहले मुझे रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। कुछ ही दिनों के बाद श्री अरबिंदो जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। शिक्षा के बारे में श्री अरबिंदो के विचारों ने मुझे निरंतर प्रेरित किया है। जनप्रतिनिधि के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए और फिर राज्यपाल के रूप में भी मेरा शिक्षण संस्थानों के साथ सक्रिय जुड़ाव रहा है। मैंने देश के युवाओं के उत्साह और आत्मबल को करीब से देखा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो वे सिर्फ अपने ही भाग्य नहीं बनाते, बल्कि देश का भी भाग्य बनाते हैं। आज हम इसे सोच होते देख रहे हैं। वोकल फॉर लोकल से लेकर
डिजिटल इंडिया तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा आज का भारत विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए पूरी तरह भारत तैयार है। रिकॉर्ड संख्या में बन रहे स्टार्टअप्स में नए नए इनोवेशंस में दूर सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्वीकार्यता में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है। बीती वर्षों में भारत ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिए हैं, नीतियां बनाई गई है, इससे भी देश में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें व बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हो तथा वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें। मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा। देवियों और सुजों, विकास और प्रगतिशीलता का अर्थ निरंतर आगे बढ़ना होता है, लेकिन साथ ही अपने अतीत का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। आज जब विश्व सस्टेनेबल प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो उसमें भारत की प्राचीन परंपराओं, हमारे अतीत की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की भूमिका और बढ़ जाती है। मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा से हुआ है जिसने हजारों वर्ष से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति से सेवा भी करते हैं। यहाँ संवेदनशीलता का आज वैश्विक अनिवार्यता बन गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शक बन रहा है। देवियों और स्वजन, मैंने अपने अब तक के जीवन में जौन सेवा में ही जीवन की सार्थकता को अनुभव किया है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीम भोई जी की कविता की एक पंक्ति है, मो जीवन पचे नर के पड़ी था जगत उद्धार। अर्थात अपने जीवन के हित और हित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जगत कल्याण की इसी भावना के साथ मैं आप सब के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। आइए हम सभी एकजुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तथा वैभवशाली व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय। Honorable President, Srimati Draupadi Murmu ji, respected Sri Ramnath Kovind ji, Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Speaker of Lok Sabha Sri Om Birla ji, Chief Justice of India Sri N.V. Ramana ji, respected parliamentarians, other dignitaries, brothers and sisters, and my dear fellow citizens, Namaskar. Madam President, you have just addressed the members of the Parliament. I wish to read a few paragraphs from the English version of the address, and the rest of
rest may be considered as read in view of the time constraint. I express my heartfelt gratitude to all members of Parliament and legislative assemblies for electing me to the highest constitutional post of India. Brothers and sisters, we have to work at a fast pace in this Amrit Kal to fulfill the expectations of our freedom fighters from the citizens of independent India. In these 25 years, the path to attain the goals of Amrit Kal will proceed on two tracks.